important, very important class. 5 to 6 minerals I will teach today. 1 and 2 points, okay? Simple. Rest you will just go through your books. Start from chromium. Look at the start. It is written that chromium, there is not much we know about, not much understood. So it's a good point. Okay. Why it is not understood? Because it has very minor role in human biochemistry, physiology, etc. That's why very little research and very little is known about it. They say that it has a role in type 2 diabetes. When I was studying diabetes in my pathology or medicine, I never saw this role in those books. Okay, so it's not a very well established role, but I have to say something. Chromium has a role in type 2 diabetes, but you must remember this is not a very much important role. So what is the role of chromium in type 2 diabetes? It may increase the number of insulin receptors. As you are going through your basics, so you may know very little about pathology and their concepts and diabetes. But diabetes occur due to two things. One type of diabetes is due to the problem in the insulin receptors. There is resistance at the level of insulin. Insulin is available, but it cannot act on its receptor because there is end organ resistance. End organ resistance means resistance at the level of the organs. The organs that are supposed to respond to insulin is not responding to insulin. Okay. So chromium is known to increase the number of insulin receptors. So it's a good point. Greater the number of insulin receptors, greater will be the activity of insulin. And what is the effect of insulin? Endocrinology module share yastasu. What is the effects of insulin? Anyone? Second year. So you may not know about insulin. Insulin, you have studied in your FSC, I think, very little, that it has a role in glucose transport across the cell. Increase glucose, no, decrease glucose in the blood. When you consume glucose at the time of meal, insulin act on certain organs and result in transport of glucose from blood into the organs. So one effect of insulin is low blood glucose. From the FSC times, you are thought that insulin lowers the blood glucose. Insulin lowers blood glucose, but this is not the only function of insulin. Whenever I teach insulin to students, I always emphasize the other role of insulin, which is the metabolism of each and every important aspect. Lipid metabolism, protein metabolism, glucose, you all know about the glucose metabolism. Glycogen, matlab, it has a role in carbohydrate metabolism. It has a role in lipid metabolism. There are two types of hormones under which your body is influenced by. What? One of them is insulin, the only hormone of its type. Okay. So on the other hand, there are many hormones which act against insulin, and insulin is counteracting all those solely. ठीक था खबर पुई गई और बायोकेमिस्ट्री की दा कॉन्सेप्ट नोट कई ची इंसुलिन ची दे नन दा टॉपिक चुंके देर ज्यादा कचते और देर लेस इम्पोर्टेंट खबरी दिनों तो बड़ा टाइम यूटिलाइज कम जिता सोता सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स नोट पज़हीन की शिखा और उस्ताद सीआर पकिश्ता हाँ जीआर खुदा रा सीआर तमा पे 21 तारीख मैसेज करे पे व्हाट्सएप पे आयरन लेक्चर में पका और आगा रीड कर सीआर हो रिस्पांसिबल पकार दे फर्स्ट ईयर वाला अदरवाइज बे बजूब फर्स्ट ईयर के बल सुक सेलेक्ट को मनो आप बे मतार सकी देखो खरे हो صح چې زمانه څه شی غوړي بیا خي خو چې زه د غوړم بیا بیا ریسپانس نه راکې انده څه نه کیږي نو
डबल साइड ना बकी हाँ ठीक था अल्लाह दिखेगी कोरोना वार्ता नहीं है लगा हाँ no so I was talking about insulin पख्तो तो ज़क शु उर्दू तो बशम I am supposed to talk in English or Urdu that's why I am talking like that इंसुलिन की बॉडी में सॉरी बायोकेमिस्ट्री में दो टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं हार्मोन्स के हमारी जो सारी एक्शंस है मेटाबॉलिज्म के वो दो तरह के हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर काम करते हैं एक होता है इंसुलिन दूसरा होता है इंसुलिन के मुखालिफ जो हार्मोन्स है उसमें एक आप लोग जानते हैं वो ग्लूकेगॉन है लेकिन सिर्फ ग्लूकेगॉन वो काम नहीं करता बहुत सारे अदर हार्मोन्स है जो इंसुलिन की उल्टा इफेक्ट्स पैदा करते हैं ठीक है तो आपने ये बात याद रखनी है इंसुलिन अकेला सब कुछ करता है दैट इज वाई इंसुलिन अगर डिफिशिएंट हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है लेकिन अगर ग्लूकागॉन का कोई प्रॉब्लम हो तो अदर हार्मोन्स होते हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं दैट इज व्हाई इन मेडिसिन वी are always talking about diabetes but no one talk about glucagon deficiency etc वो तो इतनी कॉमन भी नहीं है और अदर हार्मोन्स उनके वो इफेक्ट्स पूरे भी कर लेते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है तो डायबिटीज की दो टाइप्स है एक टाइप में इंसुलिन अपना मतलब वो प्रोड्यूस नहीं होता इंसुलिन कम होती है तो इंसुलिन कम होंगे तो डायबिटीज होगा ये तो सिंपल बात है लेकिन एक टाइप वो है जिसमें इंसुलिन नॉर्मल होते हैं जो आमतौर बड़ों में होते हैं जो नॉर्मल जो डायबिटीज टाइप 2 है ठीक है जो ओल्ड एज में ओबीज लोगों को जो डायबिटीज होती है उनमें इंसुलिन तो मतलब स्टार्ट में इतने कम नहीं होते लेकिन उनमें प्रॉब्लम जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है अभी से आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा वो अपने आप मतलब आशना कर ले ठीक है इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन resistance of the receptors at the level of the organs end organ resistance इंसुलिन रिसेप्टर रिस्पॉन्स नहीं करता तो ये जो क्रोमियम है ये इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी मतलब तादाद को बढ़ाता है तो ये अच्छी बात है अगर ज्यादा तादाद इंसुलिन रिसेप्टर के ऑर्गन्स में होंगे तो इसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि नॉर्मल रिसेप्टर्स भी आ जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगी तो ये अच्छी बात है ठीक है इट में इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ रिसेप्टर ज्यादा होंगे तो ज्यादातर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा और ब्लड लेवल कम होगा ठीक है अब एक पॉइंट है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस विद लो इंटेक अगर होगा तो क्या होगा हम इंसुलिन का जो एक्शन है वो थोड़ा इफेक्ट होगा इंसुलिन का जो एक्शन है उसकी इफेक्ट होने की वजह से ब्लड से हम ग्लूकोज को आसानी से क्लियर नहीं कर सकेंगे एंड इफ वी आर अनेबल टू क्लियर द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड दिस इज नॉन एज impaired glucose tolerance the person will not tolerate glucose so tolerate glucose का मतलब ये कि ब्लड में जो मील के बाद ग्लूकोज आएगा उसको क्लियर करने के लिए कोई हार्मोन नहीं होगा तो इस बंदे का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा इसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस ठीक है वो इम्पेयर्ड हो गया खराब हो गया इस पे फर्दर अपनी जगह पर अगर कोई उसकी डिटेल आएगी और अगर मेरे पास हो तो इस पे मैं बहुत 1 घंटा बहस कर सकता हूँ ठीक है लेकिन अभी बस जस्ट आपने ये याद रखना है कि ग्लूकोज टॉलरेंस अगर आप लोग क्रोमियम की डिफिशिएंसी आएगी तो ये कम हो जाएगी ठीक है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ट्राइग्लाइसराइड क्या होगा ट्राइग्लाइसराइड की लेवल भी बढ़ेगी अगर हम क्रोमियम कम लेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है क्रोमियम की डिफिशिएंसी आएगी तो एक साइड पे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब इस बंदे को जो रिस्क है डायबिटीज का वो ज्यादा हो जाएगा दूसरे साइड पे ये बंदा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड इसका बढ़ेगा और ये तो सिंपल है अभी से आप लोग अंडरस्टैंड कर ले ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जिस बंदे के बढ़ते हैं तो इससे क्या मसला पैदा होता है आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू सी चल की गया यो टके मा तो वो है डायरेक्ट से बना कोई कि कोलेस्ट्रॉल सेवाशी ट्राइग्लिसराइड सेवाशी पर ब्लड के नो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा है इसी बायोकेमिस्ट्री में व्हाट इज द ब्रिज टू द पैथोलॉजी यख्श यहो हाई बीपी हाई हाँ لسه شور पे नहीं है फिर गलत आंसर हाइपरलिपिडीमिया शाबाश तो हाइपरलिपिडीमिया शाबाश दक्का जवाब दे दक्का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ेगी तो इस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहेंगे व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया द वन पैथोलॉजिकल टर्म इज एथेरोस्क्लेरोसिस
एथेरोस्क्लेरोसिस का जो लिटरल मीनिंग है वो है वीकनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल। असल में ये एक बहुत ही लेंथी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलके हमारे आर्टरीज के वाल को डैमेज कर लेते हैं। और हमारे आर्टरीज में तासु बल्दिली जाड़े पीपूना वलीदिली आगे की दा लहजे मशीस हाँ। और अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उससे क्या होगा, फिर उससे आर्टरीज ब्लॉक होगी। तो यह जस्ट बिल्कुल 100% ये एनालॉजी ठीक नहीं है। चिल्ले है जूड से उधर तब मुंगा दे प्रोसेस तब एथेरोस्क्लेरोसिस वयू, लेकिन कॉन्सिक्वेंस सेम है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस के नतीजे में जो आर्टरी के वाल में जो चीज बनेगी उस चीज को हम कहते हैं एथेरोमा। एथेरोमा वो एथेरोमा हमारी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज कर सकती है, क्योंकि आर्टरी का जो वाल है उसमें बन रहा है तो आर्टरी नैरो हो रही है। और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्रेन में स्ट्रोक होगा, फालच होता हुई, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा हार्ट में, हार्ट अटैक जो होता लेमन टर्मिनोलॉजी की वही का ना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन इन मेडिसिन। अप टू 50% ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब डेथ्स एंड प्रॉब्लम्स इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आंसर दो, हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारी बॉडी में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो बंदे को क्या होगा, एथेरोमा बनेगा। ठीक है। और उसमें एचडीएल का रोल, इट हैज अ गुड रोल। कोलेस्ट्रॉल अगर मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को डिस्क्राइब कर लूं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इस तरह वो फ्रीली नहीं घूमते। कोलेस्ट्रॉल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल, एचडीएल, आईडीएल, वीएलडीएल। ओके। तो इसमें जो एलडीएल है, ये एलडीएल एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल है। तो दाजत आसानी खबरिकुम हाँ, क्योंकि मैं ये टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़ा रहा था। क्वेश्चन वो कौन था पोयो कॉन्सेप्ट दरकुम जनरल ओवरव्यू। तो एलडीएल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से एलडीएल से कोलेस्ट्रॉल लीक हो सकता है ब्लड वेसल्स में, और कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल में जमा होगा, जगह जगह पे जमा हो सकता है। जो एचडीएल है, एलडीएल को खराब रोल प्ले को, इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इट इज प्लेइंग अ वेरी बैड रोल। जो एचडीएल है वो क्या करता है, वो जाके उस कोलेस्ट्रॉल को फिर से पिकअप करता है और लिवर में उसे ले जाता है या अदर ऑर्गन्स में उसे ले जाता है। ठीक है। तो एचडीएल जो होता है वो जिस जगह पर एथेरोमा बनता है उस जगह से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है और लिवर में उसे ले जाता है। तो ये अच्छी बात है। ब्लड वेसल से लिवर में कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट को हम बायोकेमिस्ट्री में क्या कहते हैं, चलो और जीदा हुआ ऐशा भाई, the transport of cholesterol from the site of the atheroma, from the site of the blood vessel to the liver is called dash. What is that dash? रिवर्स ट्रांसपोर्ट। तो एचडीएल जो होता है वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है। तो खुद से गली ना सीचे बोले जवाब रख लगा डिस्पेप्सी है दस रिवर्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल आपके ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को भर भर के लिवर में ले जाता है और वहां पे वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अपनी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कराना है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कम लोगे तो कम कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी में, तो एलडीएल में कम होगा। और ज्यादा एक्सरसाइज करोगे या बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो एचडीएल को बढ़ाती है, स्मोकिंग नहीं करोगे तो उससे भी एचडीएल बढ़ता है। ठीक है। कुछ ऐसी डाइट है जिसकी मतलब डाइटरी चेंजेस करने से भी एचडीएल बढ़ता है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है। नो दीज आर जस्ट जनरल खबरी दी, क्योंकि टॉपिक इज वेरी मच सिंपल टुडे, दैट्स व्हाई आई एम यूटिलाइजिंग माय टाइम फ्रॉम दिस स्लाइड to go through some important concepts in medicine and pathology, physiology, whatever. जहां पर भी आएंगे आई विल टफ द अपॉर्चुनिटी दचे
مونږ خو دې خو لړ شو بټ ډیر خو دې خو نه ٹھیک ہے دا کرومیوم بارے کې دغه تاسو ورو ز هغه نه فائدہ علم ها فूड सोर्सेज ऑफ क्रोमियम फूड सोर्सेज ऑफ क्रोमियम के बारे में आप लोग इतना वो कर ले कि दैट इज अगेन वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड सोर्सेज जो सोर्सेज है उसमें ईग योक है और ग्रेन है सीरियल्स है मीट है एटसेट्रा ठीक है ये आप लोग खुद वो कर सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मिनरल नहीं है तो आप लोगों ने इतना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना ठीक है तो यही फूड सोर्सेज है इसमें इतना वो नहीं है फंक्शन ऑफ क्रोमियम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल जब आप लोग मतलब मील कंज्यूम करते हैं प्रोटीन करना तो ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो बढ़ जाती है तो बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज इंसुलिन है लेकिन सम माइनर रोल क्रोमियम का भी है इंसुलिन का जो एक्शन है उसको ज्यादा कराता है इनहांस करता है बाय बूस्टिंग इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिविटी it increases the activity of the insulin receptors ठीक है इंसुलिन की रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाता है इस पे हम डिटेल से बात कर चुकी और इससे रेजिस्टेंस कम होती है ये अच्छी बात है enhances the conversion of glucose to fat एक काम ये भी कराता है ठीक है जो आपका वो क्रोमियम है slides are very much condensed क्रोमियम की डिफिशियंसी इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं यार नो टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड मतलब क्रोमियम की टॉक्सिसिटी इतनी वो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नो अपर लेवल इसका कोई अपर लेवल किसी ने डिफाइन नहीं किया था सुबह चुवले क्योंकि कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है तो इस पे वो रिसर्च भी इतना नहीं हुआ है रिसर्च इतना नहीं हुआ है तो इसके अपर लेवल नोन है ठीक है एक्सपोज टू क्रोमियम कहाँ से होते हैं जहाँ से क्रोमियम किसी वेस्ट साइट से क्रोमियम की मकदार ज्यादा होती है मतलब फूड से नहीं होती किसी सोर्स से क्रोमियम आ रहा है किसी इंडस्ट्री वगैरह से और वो आप लोग ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लो तो ठीक है फिर उससे लंग डैमेज हो सकता है स्किन डैमेज आप लोग याद रख ले ठीक है इसको आप लोग कैसे याद करेंगे इतनी ज्यादा ऑर्गन है गोर जो ऑर्गन्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है ठीक है उसमें लंग है उसमें लिवर है उसमें किडनी है उसमें ब्रेन है इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जो ऑर्गन्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं तो आमतौर ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या कराते हैं ये तो एंजाइम्स के साथ प्रॉब्लम कराते हैं तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव साइट्स होते हैं जगह होते हैं मिनरल्स की टॉक्सिसिटी उन पे असरअंदाज होगी तो लंग में डैमेज होगा आप किडनी में डैमेज होगा लिवर में डैमेज होगा आपके कन्वर्जेंस मतलब ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती है और कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो स्किन में जमा होते हैं दैट इज वाई वो स्किन प्रॉब्लम्स भी कराते हैं बाहर से अगर कोई चीज बॉडी में आ जाए तो बॉडी उसको जो रिस्पांस कराता है पैथोलॉजी में उसको हम एलर्जी कहते हैं ठीक है तो ये स्किन में भी एलर्जी करा सकता है तो इसमें रटने की कोई वो नहीं है क्रोमियम के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है लैपटॉप से अच्छा मैंगनीज इज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स हमें पता है कि बहुत सारे मिनरल्स एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर है एक उसमें मैंगनीज है कौन सी एंजाइम दो की एग्जांपल इसमें आप लोग इसमें मेंशन हो गई है स्लाइड में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हमारी पैथोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये आप लोग जब फ्री रेडिकल्स पढ़ोगे तो इसमें ये एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज आ जाएगा तो मैंगनीज को ये एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल करता है इट हैज सम रोल इन बोन फॉर्मेशन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट रोल बोन फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो आप लोग को पता चल चुका है वो कैल्शियम है वो फास्फोरस है समवट मैग्नीशियम का भी रोल है और मैंगनीज का भी रोल है ठीक है तो आपने बुलेट पॉइंट्स को याद रखनी है मैंगनीज की कोई डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं हुई ह्यूमन में क्योंकि मैंगनीज जो नॉर्मल डाइटरी सोर्सेज में अवेलेबल है वो बहुत ही सफिशिएंट है तो इसकी कोई वो डिफिशियंसी की डिजीजेस नहीं होती तो आप लोगों को इतना मतलब इसको याद भी नहीं रखना ठीक है क्योंकि इसकी डिफिशियंसी नहीं है तो डिफिशियंसी आगे आकर मुझे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में मैंगनीज की डिफिशियंसी मतलब एज अ पेशेंट या एज अ फिजिशियन मैं पेशेंट को बहुत कम मतलब बल्कि सिरे से नहीं देखूंगा तो मतलब काम आसान हो गया है ठीक है अगर मैंगनीज ऐसा मिनरल होता जिसकी डिफिशियंसी की डिजीज बहुत कॉमन होती
तो मैंने आज मैंगनीज को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाना था, क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो मकसद है वो तो मेडिसिन है। तो चूंकि डिफिशियंसी डिजीजेस की इतनी कॉमन नहीं है, तो वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। मैंने भी इसे बहुत कम याद रखना है। मैंने अपना जो फोकस है वो आयरन पे करना है, जब मैं मिनरल पढ़ूंगा। मैंने कैल्शियम पे करना है, मैंने आयोडीन पे करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, नॉट मैंगनीज। इतना आप लोग आयरन को छोड़कर मैंगनीज पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपने आयरन को ही याद रखना है, आपने मैग्नीशियम को भी कुछ ना कुछ याद रखना है, क्योंकि माइनरल मिनरल में मैग्नीशियम का बहुत। और आपने अगर स्टडी करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपना टाइम किस चीज को ज्यादा देना है। क्योंकि ऐसे टाइम्स आ जाते हैं कि बंदे के साथ टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, खासकर प्रिपरेशन में। तो कभी कभार स्टूडेंट्स वो गलत टॉपिक को सेलेक्ट करके अपना टाइम उस तरफ कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप मिस हो जाता है। तो सीरियस कंसल्टेशन, टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उसको मतलब गौर से सुनना, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप लोग पढ़ोगे तो आपने अपना टाइम मिनरल्स में, किन किन मिनरल्स पे आपने ज्यादा टाइम मतलब अपना वो लगाना है। ठीक है, तो मैंगनीज के बारे में कुछ ना कुछ अपर लेवल इसका 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसकी टॉक्सिसिटी भी इतनी वो नहीं है, कॉमन नहीं है। बस सिर्फ उन लोगों में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है जो माइंस में काम करे, जो मैंगनीज को बहुत एक्सपोज हो। तो साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज, अगेन इट इज इन्वॉल्विंग द ब्रेन, ब्रेन प्रॉब्लम, वायलेंस, मतलब बिहेवियर में बहुत बिगाड़ आ जाता है, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है बिहेवियर। इम्पेयर्ड मसल कंट्रोल, अगेन ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो ब्रेन से एक मसल कंट्रोल है, मसल कंट्रोल में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंगनीज के बारे में हमें इतना ही वो कुछ ना कुछ याद रखना है। ठीक है, दो बार आपकी जो वो मिनरल्स आप लोग पढ़ोगे तो आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। एक आपको याद रखनी चाहिए कि कौन से मिनरल्स की डिफिशिएंसी कॉमन है, तो आपने उस मिनरल की फिर डिफिशिएंसी को मतलब स्टडी करना है। आपको उस मिनरल की डिफिशिएंसी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आयरन की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो आपने आयरन की डिफिशिएंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट इस लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए, इस लेवल पे। डिटेल्स ही नहीं, बस कुछ ना कुछ जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है, दैट वाज द लेवल। और आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी मिनरल्स की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी का मतलब है जो नॉर्मल से अगर डोज बढ़ जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा होते हैं वो टॉक्सिसिटी है। तो कुछ मिनरल्स की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, डिफिशियंसी उसकी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है कुछ ना कुछ, लेकिन डिफिशियंसी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग इसकी डिफिशियंसी पे वो ना करें, आप लोग इसकी टॉक्सिसिटी को वो कर ले। इस तरह के कुछ वाइटामिन है, उनकी डिफिशियंसी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ वाइटामिन है जिन जो आप लोग पढ़ोगे तो डिफिशियंसी के साथ साथ आप लोगों ने उसकी टॉक्सिसिटी भी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल कौन सा वाइटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को आनी चाहिए। कमी हो दे वार्ड में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, या पेशेंट्स में, या गलत प्रिस्क्रिप्शन लाइफ लॉन्ग। यार बच्चे चल ले विटामिन ए की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मिनरल्स वाइटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी पे अपने टाइम को कुछ ना कुछ स्पेंड करना है, इसको आप लोग फॉर ग्रांटेड ना लें। अच्छा, तो ये हो गया मैंगनीज। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम हाई इंटेक विल इनहिबिट कॉपर एब्जॉर्प्शन। मोलिब्डेनम की इंपॉर्टेंट ये कि कॉपर की एब्जॉर्प्शन के साथ प्रॉब्लम्स करता है। तो कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। जयोदीन भाई अच्छे चेक ले क्या रखते हैं, क्यों ना हो राजी ना। अच्छा, तो मोलिब्डेनम के बारे में आपने कॉपर की एब्जॉर्प्शन को ये कम करना है। तो मोलिब्डेनम अगर ज्यादा होगा तो कॉपर की डिफिशियंसी के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, मोलिब्डेनम भी कोफैक्टर है, बहुत सारी एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशियंसी कुछ ना कुछ नोन है। ये हार्ट इफेक्ट करता है, लंग पे इफेक्ट करता है, आईज पे इफेक्ट करता है। आपने एक बात याद रखनी है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन करता है, तो हमें पता है विटामिन ए।
बिल्कुल आप लोग आंसर ठीक थे, ठीक है। विटामिन ए डी ई की टॉक्सिसिटी आपने वो कर दी है। अच्छा, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नाइट ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। बस सिर्फ विटामिन ए ही नाइट ब्लाइंडनेस नहीं। आप लोग जब ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। बहुत सारी आई की डिजीजेज है जो नाइट ब्लाइंडनेस करा सकते हैं। उसमें एक विटामिन ए डिफिशियंसी भी है, वो भी नाइट ब्लाइंडनेस करा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मिथ अपने जहन से अभी से रिमूव कर ले कि नाइट ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस है जो नाइट ब्लाइंडनेस कर सकते हैं, जो इस लेवल पे आप लोगों ने याद नहीं रखती, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट बंदे के साथ चला जाता है और फिर सारी उम्र याद रहता है, तो ये गलत होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर आ गया मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम भी नाइट ब्लाइंडनेस का कर सकता है, ठीक। नॉट अ वेरी common cause of night blindness, but it is a cause of night blindness. It can cause mental confusion, edema, weakness, coma. मतलब ज्यादातर ये इफेक्ट करता है आपके हार्ट को, लंग को, ब्रेन को, ठीक है। वही ऑर्गन जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और ये इसका यही है, एवरेज इनटेक भी, टॉक्सिसिटी भी कुछ ना कुछ सीन है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अपर लेवल इज दैट वन, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदर मिनरल्स में बोरॉन और निकल, इसमें जो इतनी नोन नहीं है इसके बारे में भी, तो यहाँ पर जस्ट सिंपल अपर लेवल दिया गया है, सोर्सेज दिए गए हैं। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म में रोल है, तो यही तो मिनरल के काम है ना, इसमें कोई बात ऐसी वो नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन बोन फॉर्मेशन में, माइनर मिनरल में सिलिकॉन का रोल भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ, इतना वो नहीं है। ये किस चीज में पाया जाता है, तो ये भी इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लांट फूड्स, अनरिफाइंड ग्रेन, सीरियल्स, रूट वेजिटेबल्स, ये कुछ ना कुछ सोर्सेज जो अवेलेबल है टेक्स्ट बुक्स में, वो हमने यहाँ पर सिलिकॉन के वो कर लिए है, ठीक है। इसका भी कोई अपर लेवल सेट नहीं किया गया है, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, ठीक है। डिफिशियंसी कुड इफेक्ट ब्रेन, इसकी डिफिशियंसी भी उतनी कॉमन नहीं है। ये तो बहुत वो मिनरल है जो कराते हैं, ठीक। सिलिकॉन अगर ज्यादा हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ आप लोगों ने याद रखनी है। अदर मिनरल जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, आप लोग वेनेडियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। ये जो आर्सेनिक है ये बहुत पॉइजनस है। आर्सेनिक स्किन में जाके जमा होता है, तो लोग इसको एज अ पॉइजन यूज करते थे। आर्सेनिक बहुत ही पॉइजनस मिनरल है। ये आपके स्ट्रेस प्रोटीन्स, हमारे बॉडी में एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जिसको स्ट्रेस प्रोटीन्स कहा जाता है, जो नॉर्मल बॉडी में पैदा होते हैं, उसकी जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है। ये बहुत ही कम मिकदार में मतलब चाहिए होता है। अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये इसका जो टॉक्सिसिटी है वो जल्द ही आप लोग इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग इसकी टॉक्सिसिटी, मतलब आप लोग पढ़ लोगे, फोरेंसिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये मिनरल्स पे कुछ ना कुछ एक दो मिनरल शायद रह गए हो, लेकिन दैट वाज ऑल अबाउट द मिनरल्स दैट वाज लेफ्ट ओवर। तो अब फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोगों को आयरन आना चाहिए। आप लोग ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, मिनरल्स कंपीट विद एब्जॉर्प्शन। एक मिनरल मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? मिनरल आमतौर मिनरल्स के अपने ट्रांसपोर्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर एक ट्रांसपोर्टर है, वो है डाइवेलेंट मिनरल ट्रांसपोर्टर, डीएमटी। ये एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन डीएमटी की जो तादाद है, जो मिकदार है बॉडी में, वो तो फाइनाइट होगी ना। बॉडी में कोई चीज भी इनफाइनाइट नहीं है, तो फाइनाइट मिकदार ऑफ ट्रांसपोर्टर होगा। तो उस पर अगर दो तरह की या तीन तरह के मिनरल्स कंपटीशन करेंगे, तो जो मिनरल्स ट्रांसपोर्टर के साथ अच्छी तरह बाइंड होगा वही एब्जॉर्ब होगा, और दूसरी की एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो ये जो सारे मिनरल्स है, खासकर जो डाइवेलेंट मिनरल्स है जिन पे 2+ चार्ज होता है, वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इसी तरह कम करते रहते हैं। तो द आंसर इज, द क्वेश्चन वाज हाउ मोलिब्डेनम डिक्रीजेस कॉपर एब्जॉर्प्शन। इट इज जस्ट अ कंपटीशन, ठीक है। द टर्म इज कंपटीशन।